Good morning, everyone. Thank you all for joining. Guys, am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Guys, one request. Can you please all raise your hands, those who want to talk, because it feels difficult because sometimes I talk and the time passes. So we'll recommend those who want to speak just raise their hands so that I know you can utilize the time properly. I won't speak much. You guys speak. Okay, so there's Shreyash, Krinjal, Ashutosh. Anyone else who want to speak? Arnav, Bobby. You have also sent the news. Please keep your hand raised. That's it, only 3. Yeah, then I won't give anyone the chance to talk. Okay. There's also Kaustubh is not there. Krinjal. Vignesh is not there. Okay. Rishabh, you want to speak? Bora. Okay. Asha, so let me start with this. Okay, again, we're talking about the tourism sector now. Chennai first time gets the Taj branded residence. Now this is a Taj branded residences. Now forget about the hotels are already there, but now they are also bringing Taj Skyview hotels and residences. This is first time, and the price of each of the from this, the price of each room is costing between 8 crores and 25 crores. Now this is crazy. That Chennai, I am not sure. I have never been to the south of India specifically to analyze anything. I've always been to north and the west. 8 crores to 25 crores. Now this is not a middle class or maybe higher middle class also. This is like luxury class. 25 crores house, only ultra HNIs can buy. The project have over 60% of units booked ahead of the schedule. Now, tourism plus residential, the every time I speak about, so I would say this industry, the hospitality industry, everything related to tourism will have a boom in the future. I am personally invested in all those. I'm not saying you guys should invest. I'm saying that I'm personally invested in that. Because the way I am, looking at the sector now, I'm just finding which stocks will be, beneficial for to invest with all the valuations and modeling report, quarterly analysis and all. So tourism is a sector to go through. I will suggest that every day there is some of the other parts who are coming, and people do have a lot of money. Yeah. Rahat, you can also talk about Maruti. I was going to talk about it. Yeah. Rahat, you want to speak? Maruti? Okay, fine. So Rahat is saying that it is viable because South Indians have lot, plus the property prices are low as compared to North India. Whatever it is, but 25 crores doesn't seem a small price. Whoever buys it, property prices are low, so it doesn't mean that 25 crores is a small amount. Probably you might get a bigger house, but still 25 crores is. Sir, am I audible? Yeah, you're audible. You're right. Sir, the reason I was saying that if you look at the DLF properties in Gurgaon, so if they can fetch somewhere around 60 to 75 crores, so why can't this Taj branded properties? I mean, No, if you look at the I was saying, I'm not हाँ, saying कि नहीं क्यों नहीं कर सकते. I was saying that growth हो रहा है, वो मैं बात कर रहा हूँ. मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता है. I'm just saying कि ये segment में growth हो रहा है overall. But sir, my point is कि sir, the property prices in South India, as I have seen in Hyderabad, it's way too low as compared to North India. So if you see as I compare to the premium properties in very good societies, if you look at the Delhi, so the same property which will cost you somewhere around 6 to 7 crores in Delhi. नहीं, रात एक सेकंड, ऐसा नहीं बात करते हैं. Always talk in square feet. तुमको स्क्वायर फीट के बारे में पता है तो बताओ. ये मुझे नहीं पता कितना स्क्वायर फीट है, इसके लिए मैंने कुछ बात नहीं की इस पे. 25 करोड़ में दे रहा है तो क्या स्क्वायर फीट पे दे रहा है?
Sir, Okay. the average price in square feet, in terms of square feet, in Delhi is somewhere around 13 to 14,000. But in Hyderabad, which I have came across few properties, the average square foot price is somewhere around 8,000 to 9,000. नहीं, एवरेज नहीं है. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लग्जरी ब्रांड्स. लग्जरी ब्रांड के प्राइसिंग की बात करो. इंडिया, मुंबई में इट इज 1 लाख पर स्क्वायर फुट. इफ यू टॉक अबाउट ओबेरॉय, प्रेस्टीज एंड ऑल. गुड़गांव में डीएलएफ की बात करो तो इट इज अराउंड 50,000. अभी रिसेंटली जो फ्लैट लिया था इसने So DLF का area. डीएलएफ में दीपेंद्र गोयल में लिया था हमने. उस दिन कैलकुलेट किया था, इट वाज अराउंड 50,000 के आसपास था. तो ये होता है, ये प्राइसिंग होता है. एवरेज तुम ले ही नहीं सकते ना, ये बात. इट इज नो पॉइंट एवरेजिंग दिस कॉस्ट. मैं बोलूँ Okay, sir. मेरे पूना में तो 12,000 रेट है. पता चला मैं गांव में रह रहा हूँ पूना में, तो वो भी तो एवरेज हो गया. Okay, sir. In terms of square foot pricing, I don't have much idea. तो I'll get back to you on this after ये some जैसे doing some research. जैसे इंटर में बोलोगे ना, वरना तुम अभी जो बोल रहे हो ना वो सब वेग लग रहा है. ठीक है, ये Okay, एवरेज okay, okay, sir. एवरेज है ही नहीं ना इसमें. तुमको एवरेज की बात ही नहीं कर रहे. तुम ताज के ब्रांड की बताओ, उसका एवरेज कॉस्ट कितना है. इन मुंबई में कितना है डीएलएफ, मतलब वही तुमको पता है. ताज जैसा ब्रांड डीएलएफ में इट इज अ बिगर ब्रांड. प्रेस्टीज हो गया, तो उनके स्क्वायर फुट के प्राइसिंग कितने हैं. तुम ओवरऑल कर ही नहीं सकते कि एवरेज है. Okay, okay, sir. Okay, ओके, गॉट इट. got it, sir. तुम मारुति पे कुछ बोल रहे हो? Yes, sir. I shared you this one news with you in morning. Yeah. Regarding the Maruti is planning to launch some new 8 models in the incoming 3 to 4 years. So Yes. they are trying to regain their pre-COVID market share, pre-COVID levels of market share. So currently the share is somewhere around 38 to 40%, but now they are focusing on to increase their share to 52% in the next 3 or 4 years. And plus, they are also planning to invest some 8 billion rupees in India in the next 3 to 4 years. Okay. Yeah. There was one more point in this, Arahat. Currently the model stands at 20 and they are planning to bring it to 28. अभी वो 20 दिया नहीं उसने, मुझे समझा. टोटल 28 करेंगे, मतलब 8 लॉन्च करने वाले हैं. Probably 20 होना चाहिए. And the launches, sir, are all into SUV segment. SUV segments. Define कर रहे हैं ना, हाँ. And in because that they segment, have sufficient models in this lower segments, hatchbacks and all. hatchback. So they are trying to gain market share from this SUV segments. SUV segments. And probably they are coming up with powertrains like hybrid, natural gas, and hybrids biogas. And electric भी लिखा था किधर, तो I think किधर electric भी लिखा था. Yes, sir. तो क्या फर्क है तुमने बोलने में और मेरे बोलने में? You focus more on the segments and their features. क्योंकि तुम बोल रहे हो, you are saying as if I know everything. ठीक है, वो मुझे पता है ना, but you are talking in the forum, सबको पता होना चाहिए. Assuming कि उसने मारुति ही नहीं पता उसको क्या है, यहाँ से तुमको चालू होना चाहिए. हाँ. Okay, sir. And ना तुम स्टार्ट ऐसा कर दोगे, मारुति is planning to increase his market share to 50%. और increase his market share by 1,200 basis point, मतलब वो 12% to 50%. तो ये this will be an attractive. क्या कर रहा है मारुति? For that, Maruti is planning to launch 8 new vehicles, 8 SUVs specifically in the next 5 years. For that, they are investing around $8 billion. In the SUV segment, they are coming up specifically into hybrid powertrains, natural gas, and biogas powered cars. Currently, the model stands at 20 models. They are expecting the new SUVs will bring Suzuki's total production portfolio to around 28 models. हो गया. Okay. So their capex increased their 1,200 billions. Sorry. They are investing at least 12,000 billions. नहीं, 8 बिलियन लिखा था यहाँ पे. 12,000 बिलियन कितना हो गया? क्योंकि मैंने इसमें किया. अरे 12,000 बिलियन कितना हो गया पता हो? इंडियन रुपीस में पता है 12,000 बिलियन कितना हो गया? 700. 12,000 बिलियन क्या हो गया? 12 बिलियन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा. 12 बिलियन. हाँ, ठीक है. 8-12 बिलियन फाइन. नहीं कर रहे ज्यादा. अच्छा, यहाँ पे ना I would like to tell you something. ये रीड करते करते ना I was just going down the newspapers. ठीक है, I'll show you. वहाँ पे ना मुझे I got something on the 1 second.
there was something about the auto component sector. I'll show you. अच्छा, और एक चीज था यहाँ पे ना, कि Mercedes beats auto margin estimates and improved premium sales. ठीक है, इसका कुछ लेना देना है Yes, नहीं, sir. इसे ऐसा कुछ लेना देना है नहीं हमसे, पर क्या समझा ये Mercedes beats auto margin estimates on improved premium sales means what is happening in the industry? Adaptation to premium products. One second. Yeah, this news, strong demand to rev up growth for auto components and अच्छा, ऑटो कंपोनेंट्स का ग्रोथ कब होता है? ऑटो कंपोनेंट मतलब ब्रेक्स, पैड्स, शॉक ऑब्जर्व्स, जब ऑटोमोबाइल का ग्रोथ होगा सर। जब ऑटोमोबाइल का रहता है, करेक्ट। यहाँ पे they have mentioned that the manufacturing margins are likely to climb 20 to 30 basis point. मतलब कितना हुआ? Likely to climb by 20 to 30 basis point means how much percentage increase? 0.25 0.2%. 0.2 मतलब 10 है तो 0.2 होगा, 10.2 होगा, 10.3 basis point due to operation. देखो क्या लिखा है, operational efficiencies, correction in input cost and the raw margin index is expected to rise only by 1-2% coupled with layers to pass on the price hike. अच्छा, यहाँ पे ये इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट कभी काफी तो मेंशन किया था कि कंपनीज आर सेलिंग प्रीमियम, जैसे वो मर्सिडीज का था ना, इसके मार्जिन क्यों एक्सपांड हो गए? प्रीमियम प्रोडक्ट्स के वजह से भी एक्सपांड हो रहे हैं। कहाँ पे हायर use and should also lead to premiumization and thus spurring the demand for original equipment manufacturers. तो यहाँ पे ऑटो कंपनीज तो हमको इतना समझ में नहीं आता, बिकॉज ऑटो कंपनीज थोड़ा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक कंपनी बहुत कुछ बनाती है, थोड़ा बहुत ओवर बर्ड्स आई व्यू रख सकते हैं कि ऑटो कंपनीज में क्या चल रहा है, पर प्रोबेबली जो ग्रोथ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ऑटोमोबाइल ग्रोथ होगा तो ही ग्रोथ, तो ऑटोमोबाइल क्यों ग्रो होगा? तो इसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉलो करना होता है। इफ यू वांट टू फॉलो ऑटो एंसिलरीज, ऐसा नहीं बोलते आई एम फॉलोइंग ऑटो एंसिलरी सेक्टर, पागल समझेंगे लोग तुमको कि मैं ऑटो एंसिलरी फॉर्म ट्रैक कर रहा हूँ, सर ऑटो एंसिलरी का ग्रोथ 10% 20% होगा, और ऑटो का जब तक पता नहीं तब तक ऑटो एंसिलरीज हैव नो मीनिंग। अच्छा, नाउ तो ऑटो एंसिलरीज वैल्यू चेन में नीचे बैठता है ना सर? हाँ करेक्ट, तो तुमको हिस्टोरिकल तुमको पता है, सॉरी ऑटोमोबाइल के नीचे आएगा ना वैल्यू चेन में। करेक्ट। सो ऑटोमोबाइल जब तक नहीं समझ तब तक ऑटो एंसिलरीज समझ, Yeah. मतलब बोलोगे कि मैं ऑटो एंसिलरीज फॉलो करता हूँ तो पीपल विल, तो ये पागल है आदमी, कुछ समझता नहीं है इसको। ओके, सो सेल्स टू ओईएम, सो ये क्या लिखा था? एक्सपोर्ट्स आर द की डेस्टिनेशंस सच एज नॉर्थ अमेरिका हाउएवर एक्सपेक्टेड टू हिट बाय यूएस टैरिफ। एक्सपोर्ट्स टू की डेस्टिनेशंस, सर ये लिखा था कहाँ पे? एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रहे हैं, कहाँ पे तो लिखा था, आई एम नॉट गेटिंग वेयर इट वाज रिटन। एक्सपोर्ट्स में हमने वो मारुति के जब ऑटोमोबाइल वेबिनार्स कर रहे थे तो ऑटोमोबाइल सब देखा था कि एक्सपोर्ट सब बढ़ रहे हैं, एवरी एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग। जिन्होंने ऑटोमोबाइल वेबिनार देखा होगा या तुम नंबर्स डाल रहे हो उनको समझेगा कि एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। यस सर। तो अभी ठीक है, एक्सपोर्ट्स तो वी आर नॉट ट्रैकिंग, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, पर उससे ये भी समझता है कि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, मतलब मारुति का ग्रोथ हो रहा है, टाटा मोटर्स का ग्रोथ है, तो ये जो ऑटो कंपोनेंट्स के उनका भी ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ से ना व्हाट इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस इज ऑटोमोबाइल के मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, जो मुझे ऑटो कंपोनेंट्स के न्यूज में मुझे कुछ पता चला। ये पे भी दिया कि 70% of the auto component revenues with exports accounting for 15% and the balance 13% around replacement market. तो क्या है, अगर कोई पूछे ना ऑटो कंपोनेंट्स, अगर तुमको भी जानना हो तो रिप्लेसमेंट मार्केट, व्हाट इज रिप्लेसमेंट मार्केट? हम जो गाड़ियों में जो वेयर एंड टेयर करते हैं उसको रिप्लेसमेंट मार्केट बोलते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए। तो ऑटो कंपोनेंट्स का सेल्स सिर्फ नए ओईएम्स को देके नहीं आता है, रिप्लेसमेंट से भी आता है, बट वो कितना आता है? सिर्फ 13%। 70% तो 72% तो OEMs आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये सब वर्ड्स थोड़े बहुत पता होना चाहिए क्योंकि पेपर्स में बार बार आते रहते हैं ये वर्ड्स। तुम बोलोगे सर मैं एनालिस्ट हूँ इसके लिए मुझे सब पता चला,
ये सब मुझे इंटरव्यू जाने के पहले ये सब चीजें मुझे पता थी। बेसिस पॉइंट, आज मैं पूछता है एमबीए वालों को बेसिस पॉइंट पता नहीं होता क्या है। सो OEMs इज अराउंड, OEM इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो बोलते हैं ऑटो कंपोनेंट्स ट्रैक कर रहा हूँ तो उसमें रिप्लेसमेंट मार्केट भी है 13%, 15% एक्सपोर्ट एंड द रेस्ट 72% इज फ्रॉम द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि अगर नए गाड़ियों का सेल नहीं हुआ तो ऑटो कंपोनेंट्स का वैसे भी सेल्स होने वाला है नहीं। ओके ओके श्रेयस, एनीथिंग ऑन टू व्हीलर्स हीरो का, TVS का सॉरी Not Hero, it was TVS TVS actually. The TVS motor releases quarterly report on Tuesday, so I had made an analysis and I had sent you on WhatsApp. yeah yes Okay. can you tell Wanted to talk. So do you want me to share it? yeah just tell others ना, assuming they have not written, तुमको क्या पता है Okay, just okay. हाँ Okay, done. So as I told you, the quarterly report was released on Tuesday. So its consolidated revenue, the growth was 25% year on year, and this growth was because of increase in volumes by 23% to around 1.5 million units. Shreyas, your voice is echoing a bit, can you come closer to the Hello, mic? hello. Is it proper now? No, it's still echoing. Are you in a room? Yeah, actually I'm in a room, in a class. Acha, okay go ahead. Yeah. So the revenue growth first was because of this units growth, then GST rate cuts, and the नहीं, average श्रेयस realization. श्रेयस ऐसा बोलो ना जैसे तुम इंटरव्यू में बात कर रहे हो, just prepare like that, don't be casual, be a little bit serious and talk about it. Okay, Okay okay. okay So GST rate cuts and the no average realization. start from again, start again. Okay, so TVS Motor releases quarterly reports on Tuesday. Its consolidated revenue was up by 25% year on year, and this growth was because of increase in volumes, which was by 23% to 1.5 million units year on year basis. If you see the GST rate cuts also, participated in the revenue growth of TVS Motors. Along with that, the average realization is up by 5% at 79,000 rupees per vehicle. Also, the EBITDA and EBIT growth, if you see, the margins are up by 60 basis points. And this was because of the reduction in the employee cost and other expenses. नहीं So, श्रेयस उसके पहले ग्रॉस मार्जिन वो तुमने लास्ट में लिखा है, रेवेन्यू के हाँ, बाद ग्रॉस क्योंकि वो मार्जिन आता है बैड ना। पॉइंट है ऐसा, लाइक इट वाज नेगेटिव पॉइंट, सो आई वाज मतलब नहीं पहले नहीं तो सब। फाइन ना, कि बिकॉज मेजरली तो वही कॉस्ट है ना। हाँ मतलब इट हैज गॉन डाउन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द लास्ट। नहीं नहीं ऐसा नहीं, यू शुड गो, क्योंकि पीएनएल है ना, हम फाइनेंस वाले ना, तो पीएनएल में राइट, पहले सेल्स आता है, वो बराबर है तुमने सब, सेकंड इज ग्रॉस में, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही बात करना है। ओके ओके, गो एज पर द फ्लो, यस। okay, got it. So हाँ the gross margin, if you see, the gross margin have gone down by 110 basis points. नहीं, ग्रॉस मार्जिन हैव डिक्लाइन, गॉन अप नहीं बोलते ऐसा, Sorry, ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज या declined. हाँ, तुमने गॉन अप बोला है, डिक्लाइन हो गया, ठीक है हाँ Sorry, my bad. So हाँ the gross margins have declined by 110 basis points due to the increase in raw material costs. And after that, if you see the EBITDA and EBIT, so it is increased by 60 basis points, and it was because of the reduction in employee cost and the other expenses. So this company is expected to launch Norton, a super premium bike segment in India by April 2026. So which will have a good impact on its revenues. नहीं, That गुड इम्पैक्ट ऑन इट्स रियलाइजेशन। realization and revenues as well. रेवेन्यू तो हो जाएगा, वो तो समझता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो नाउ यू टॉक अबाउट सिंस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, तो यू अंडरस्टैंड कि रियलाइजेशन बढ़ेगा उसका, Right, right. So that वॉल्यूम was ग्रोथ हो ना हो, रियलाइजेशन तो बढ़ेगा। right. ऐसा है। It was it. So TVS is expected to launch a super premium bike named Norton Norton. in April 2026. Sir, it might lead to increase in realizations of TVS currently, which stands at 79,000. वो तुमने already बोल दिया है। Higher realization, right, right. And Because of company the also super premium plans bike. to launch 4 new models in the last quarter. Okay, right. अच्छा, और ये 4 न्यू मॉडल्स कुछ स्पेसिफाई किया है कौन से सेगमेंट में क्या है? Specification मैंने डाला नहीं है, but this four models, one is the Apache, that is adventure bike. Two Okay. are scooters. One of them is electric vehicle, and one is three-wheeler. So One is these 3 four wheeler. models are अच्छा, there. okay, great, हाँ, great, good one sir, मतलब ये कैन Thank you, sir. ये सब चीजें ना, इफ यू रीड अ कॉन्फ्रेंस कॉल, तुमको अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा या तुमने न्यूज़ से पढ़ा ये? कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं पढ़ा मैंने न्यूज़ से पढ़ा। आज के इसमें था न्यूज़, और
मतलब वो आया नहीं है, वो कॉल का रिपोर्ट उनका आया नहीं है। कौन कल तो हो गया होगा ना। हो गया बट मैंने अटेंड नहीं किया, आई वाज नॉट अच्छा, एबल टू अटेंड। तो देखो ना, अभी ट्रांसक्रिप्ट आया रहेगा तो पढ़ लेना। हाँ ट्रांसक्रिप्ट आया होगा तो क्योंकि मैं क्या इसमें होगा, से। दिस इज नाउ फ्रेश विथ यू, तो वो राइट। याद रह जाता है। तुम अभी 4-5 दिन बाद पढ़ोगे, वापस भूल जाओगे अरे पढ़ा क्या था। राइट। ओके, ठीक है सर, मैं पढ़ लूँगा। सुन लेना। हाँ, क्या बॉबी वांट्स टू से, या बॉबी क्या तुमने पढ़ा बॉबी? नहीं मतलब वही मतलब इन ट्रांसक्रिप्ट आई डिड आई डोंट हैव द ट्रांसक्रिप्ट बट टीवीएस का एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं लाइक 230% of the revenue. That's what I had heard in the conference call. Also, अच्छा, they are setting up an off like they are also setting up an office in Dubai also. So okay, they are, yeah, and all these things, and also when it comes to the as per my knowledge, when I had seen the decrease in COGS was due to the constant effort to increase the top line. So how they were increasing by trying to reduce the material cost, and also they were trying to raise the prices to cover some cost increases, as well as they were having leveraging the scale benefits, and they were having a better product mix, as it was explained before. right, So also and also the reason for the other expenses increase, like there was a slight increase. It was due to the 120, like it rose, like the packing and freight expenses rose by 120 crores. नहीं बॉबी, सी नाउ, you Yeah. have to follow a sequence. अभी you Okay. started with exports, then again you went to cost, and अभी वापस तुम realization पे आ रहे हो. So it should talk about. Okay. So you started with exports, fine. You started with, sir, exports have increased by 30%. It has led to increase in realization. So product mix की बात है. This is what it happened. ना? Product mix is what? Product mix is something about the products. कि obviously when you exports when you start exporting, your realization increases. Correct. Yeah. Now he has said 79,000. So you have got a number that was 79,000. 79,000 increase. So because of product mix, it is also expected to increase. Yes. And majorly the increase was he mentioned that the realization was up 5%. You could have also mentioned a realization was up because of the product mix, means selling more premium products, and because of exports. Straight away. वही है reason. Yes. Even if they have not mentioned it. Okay. Yes. Okay. Noted. And then you can talk about exports, as you have said that TVS also plans to launch a office in Dubai. Got it. Okay. Got it. Okay. So you can reduce your newsletter. You can reduce a bit. इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. And हम crores में नहीं बात करते. It is either in millions or billions. Never talking Million. crores. Never talking crores. Noted. हाँ. सर मैंने भी कल इसके ऊपर आपको न्यूज़लेटर भेजा था. आई हैव लिंक्ड टू इकोनॉमी, लाइक आई हैव लिंक्ड टू जीएसटी, इंटरेस्ट रेट्स एंड आल्सो मानसून. सो एक बार वो भी आप देखना सर. मैं कल भेजा था. Okay, sorry. Yesterday I missed a bit. Go ahead, Rishabh. Yeah. Sir, actually everything has been spoken and covered by all of them. So there's what is that nothing they have much. not spoken? वही ये नहीं बोला वो लोग ने, डिमांड ड्राइवर्स की बात नहीं की. Sir, I tried to connect the growth of the sales. As you said that TVS has a major portion of revenue from rural India, if we speak about Indian segment. So because there was a good monsoon across the country, India saw a steady growth of sales. Also, because of reduced interest rates, the financing has increased, and GST 2.0, of course, gave a robust demand increase to TVS. So this was the thing I added. Okay. And this also sustained double-digit growth in revenue and profit. Rising adoption of EV and strong urban markets are expected to support in the coming quarters. Acha, now Shreyas, Rishabh ne he have also written about the multiple launches. So he has written about EV में क्या होने वाला है, TVS Orbiter. Urban logistics में there is TVS King, which is also an EV product, which is launching. Scooters में TVS Ntorq 150 launch हो रहा है, and bike में Apache RTX. तो इसका तुम pricing देखोगे
तो ऋषभ यू कैन ऑल्सो फाइंड द प्राइसिंग, इसके प्राइसिंग क्या है, Okay, sir. बताने के कि मुझे पता होना चाहिए अभी वो एंटर, अगर लेट्स से आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे पता ही नहीं एंटर क्या है, तो पता होना चाहिए कितने की आती है। ठीक है सर। ओके, एक और स्टेप विच यू गिव डेटा पॉइंट, जितना तुम डेटा दोगे ना सामने वाले को, ही बिकम्स दैट हैप्पी ना। फर्क क्या था ऋषभ में, ऋषभ एंड श्रेयस में, व्हाट वाज द डिफरेंस श्रेयस, दैट यू ओनली गिव द 4 मॉडल लॉन्च किया। ओके, ऋषभ ने उसका नाम के साथ बताया, इफ आई वाज एन एनालिस्ट मैं प्राइस भी देता, ठीक है, आई वुड हैव मिक्स श्रेयस, ऋषभ एंड मेरा, जो तुमने मिस किया कर दिया। ओके, now why I'm saying, because the one who is reading it, अभी मुझे पता है एंटर कितने का आता है, मुझे नहीं पता टीवीएस किंग कितने का आता है, because I am not into 3 wheelers, तो शायद से टीवीएस ऑर्बिटर भी कितने का है, what is the price of टीवीएस ऑर्बिटर। तो ऐसा आता है कि सर टीवीएस ऑर्बिटर मीन्स इफ इट्स लॉन्चिंग सो इट इज इन द स्पेस ऑफ होंडा एक्टिवा, अगर वो 1 लाख का है तो, या ओला का है तो, अगर ओला को ही ट्रैक कर रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि ओला को और एक कॉम्पिटिशन आ रहा है टीवीएस का। तो ये ऐसा एनालिसिस होता है, समझ रहे हो। यू कैन ऑल्सो टॉक मोर ऑन जस्ट ये 4 पॉइंट पे, कि 4 मॉडल लॉन्च किए तो किस किस को प्रॉब्लम होने वाला है इसमें। ठीक है सर। ओके, एंड फिर नाउ यू कैन जस्ट गूगल इट, या हम वो टीवीएस का मार्केट शेयर कितना ईवीज में, वो भी तुम देख सकते हो कि टीवीएस हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 10-20%, 30%, आई थिंक इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन ईवीज। यस सर। तो बस इतना, मतलब ये क्या था, ये एक एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि और कितना डीप जा सकते हैं, बिकॉज क्या फर्क है, अभी जैसे ऋषभ तुमने बोला कि सर सबने बोल दिया, मैं अलग क्या बोलूं, श्रेयस ने बोला था, अभी श्रेयस का था तो बॉबी ने बोला कि बॉबी ने एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की, तो अज्यूमिंग ये तीनों चीजें, 3-4 चीजें अगर तुम कंबाइन करके लिखते हो, तो टीवीएस के बारे में तो मुझे भी समझ गया अभी क्या बात कर रहे थे, एज एन इन्वेस्टर तुम चारों का सुन के मुझे समझ गया कि बात समझना क्या क्या हुआ है टीवीएस में, बट व्हाट इफ इट कम्स ओनली फ्रॉम वन पर्सन, मतलब वॉट एवर तीनों में से कोई भी बोलता, इट मेक्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट कि सब बोल दिया, अभी इसके आगे कुछ मेरे लिए कुछ है ही नहीं पूछने का, मतलब तुम्हारे न्यूज से ऐसा है। गॉट इट, others also, what things are missing and how should you, present all those things. Okay, got it. Bobby, Shreyash and Rishabh. Now this is, I will say, यही जो होता है ना USP तुम्हारा, you are a CA, you are an MBA, you are a CFA, फर्क क्या है सब में, डिग्री तो सबकी सेम है, तीनों में भी फर्क है। ऐसा नहीं है कि सीए है तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, ऐसा नहीं कि सीएफ है तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, ऐसा नहीं कि एमबीए सर में टीयर 3 टीयर 4 से एमबीए तो मुझे प्रेजेंट करना नहीं आता, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके फाइन, नॉर्टन इज एन एडवांटेज और इज बाइक फ्रॉम यूके। ओके फाइन, अच्छा, या Prinjal on Varun Beverages. Yes, sir. Good morning. Good morning. So, sir, today I'll be talking about Varun Beverages as it is entering into alcohol beverage market. Majorly, the key products would be beer, whiskey, rum, gin, vodka, and wine. So, Sorry, come again, sorry, I missed it. Majorly, Varun Beverages will provide into beer, whiskey, rum, gin, vodka, and wine. Okay. They're So, diversifying, okay. yes, sir. So, Okay. as we know, because Varun Beverage is a bottling partner of PepsiCo, but they, because of the demands and cold season, it is reducing in market share. So they are pushing their alcohol beverages market right now, and they have also tied up with Carlsberg to distribute beer in select African regions. This is major part of their diversification. And when speaking about financials, their profit for the year was 19.6% and revenue grew by 22.3% and volumes were up by 2.4%. And when and talking about the stock movement yesterday, because of the diversification news and etc., it grew. It's the stock Increase. Yes, sir. Grew increase. Yeah, the stock jumped by 9% in a single day. So this Oh, was just okay. an update. Yes, sir. अच्छा, तो I will say Varun, this is a big news, मुझे नहीं पता था, I just read it now. Varun Beverages comes into alcohol business. Reason?
वरुण बेवरेज, I will say ये company, this was a partner of PepsiCo, correct? वो सब पेप्सी के products इंडिया में जो भी पेप्सी है, लेज है, wafers, and this is what Varun Beverages was selling in India. Now the shift towards alcohol beverages. Yes, sir. क्या हो सकता है इसका? Because they are increasing the market share, because nowadays we see there are a lot of things like because of irregular rains and irregular rains and the cold winters which are ahead of us. So that is the major reason the products of Pepsi and etc are not moving so nicely in the market. So they are going into the beer market, sir. Beer market. Alcohol market, sir. But I was connecting this news to the previous morning calls that we talk about, growth in alcohol segment. हम बात कर रहे थे ना उस दिन, we were talking heavy discussion about the alcohol कि जिन पीते हैं cocktail based होते हैं Yes, products. sir. हाँ, तो ये क्या हो रहा है? तो I can say probably लोगों का lifestyle change हो रहा है, and this segment, वही alcohol is also a part of your spending power. कि अल्कोहल पे कौन पैसा खर्च करता है? ऐसा नहीं कि मुझे आज मुझे अल्कोहल पीना है, वही पैसा खर्च होता है which is the spare one. एंड ऑल्सो सर अल्कोहल में प्रीमियम, मतलब पिछले न्यूज़ में ऐसा पढ़ा था करके प्रीमियम जो बॉटल्स रहते वो ज्यादा बिक रहे थे रादर देन बियर, एंड नॉन अल्कोहलिक में बियर्स जो फ्रूट बियर्स है, फ्रूट बियर्स ज्यादा बिक उसका रहे भी ग्रोथ हो रहा था. Yes, Gen Zs are the one who likes the drinks. So ये मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि वो बियर जब पियोगे ना, तो वो बडवाइजर का कभी पीना, नॉन अल्कोहलिक वाला सेम वैसे ही लगता है बियर की तरह, जिनको टेस्ट पता है. So I just one of my brother is a distributor of this Budweiser in India. तो I asked him, ये क्या है, तुम ऐसा अलग से क्यों कर रहे हो? बोलते हैं we are now, ये लोग जो कंपनीज है, they are planning to bring that taste in the young generation. That's crazy. मतलब तुम्हारा अगर भाई बहन कोई पीते होंगे ना वो ड्रिंक, उनको अवॉइड करना, बिकॉज वो इतना एडिक्टिव है. एंड इफ दैट गाय, मेरा कजिन है, ही ड्रिंक्स लाइक लाइक अ नॉर्मल ड्रिंक. मतलब इतना कड़वा ड्रिंक कैसे पी सकता है? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम पिया था, मुझे लगा इट इज एन अल्कोहल. वो बोलते हैं नहीं भैया, इट इज नॉट एन अल्कोहल, एंड आई एम लाइकिंग इट. सो दिस इज, दे आर ब्रिंगिंग दैट टेस्ट इन योर in the young generation. And also, sir, we have also spoken before, like the energy drinks we talk about. So that is also giving us the taste of alcohol sometimes. Alcohol, correct, yeah. Yes, sir. ये हो रहा है इंडस्ट्री में, and I think it is very, from a let's say from a family point of view, it is quite disturbing. तुम अभी से ही बच्चों में वो, पर ठीक है, अभी ट्रेंड ही वैसा है, तो you cannot help. So, but it is not kind of unethical to do that. It is not unethical ना, हम तो नॉन अल्कोहलिक ही है, तुमको पीना है, हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं तुमको पीने में. ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, it is a marketing strategy. तो मत पियो फिर एनर्जी ड्रिंक, हमने बोला पीने को. एंड से इट इज ऑल लीगल ना, लीगली है वो, उसमें कुछ अल्कोहल तो है नहीं. पर तुमको अगर मैं दवाई दूं, नहीं पियोगे? कड़वी है, पी रहे हो ना? Yes, sir. क्यों? एनर्जी ड्रिंक भी तुम लेते हो बिकॉज यू फील वीक, तो मत पियो. Okay. So also, I had one news about the Shiprocket company, logistic company. I wanted to connect by everything. So can I share? What is it? The Shiprocket revenue grew 24% sir, on year basis. The major reason for that increase was the logistic part of Amazon and Flipkart, etc. They are increasing their warehouses facilities in domestic market. So, Okay. and before we have read also that Amazon, Flipkart, or every other brand is riding on the festive demand. Correct. Of the every business. So how will this affect the differentials? Because I saw Nykaa also. Nykaa is also growing nicely, I guess. So Nykaa is also promoting premiumization and the digital marketing company. As we saw, Royal Enfield is also listing on Flipkart. They have collaborated with Flipkart. So how can we connect this? Hey, so this is an industry-wide news. The logistics sector in India is growing. Okay. And logistics sector, which are the companies, delivery. I recently found a lot of trucks of delivery, which I see. Delivery, the company. Okay, Yes, now they are the one who is a market leader in short distance couriers.
I just now received a courier. I will say मेरे को कहाँ से मिला है वो, ठीक है ना, हाँ पोर्टर से आया है वो, from Porter. Now like Porter delivery also have this app and they send it. I just now receive a courier from पता नहीं कहाँ से आया है, तो so उस पे लिखा है तो कहाँ से आया, तो पोर्टर से आया है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस में ना दिस गाइस आर यू नो हेल्पिंग। अभी पोर्टर क्या है, पोर्टर इज एन ऐप, उसके खुद के एम्प्लॉयज थोड़ी है, तो वो एक डिलीवरी पार्टनर से टाई अप है। तो ये काफी ग्रोथ हो रहा है मार्केट में, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कंजम्पशन डिमांड, उनको तो अमेज़न पे जस्ट गो एंड फाइंड, दे आर सेइंग सेम डे डिलीवरी एज वेल। सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. ये सब में लॉजिस्टिक प्लेयर्स आर प्लेइंग अ बिग पार्ट। अभी थोड़ा लॉजिस्टिक तो डिफिकल्ट सेक्टर है टू अंडरस्टैंड, मुझे इतना समझा नहीं है कि कैसा होता है, व्हाट इज द सप्लाई चेन, है ना, मतलब जैसे मैंने पोर्टल पे किया तो पोर्टल को कितना पैसा मिलता है, लॉजिस्टिक वाले को कितना पैसा मिलता है, हाउ आर दे एम्प्लॉइंग, मतलब वो उनके एम्प्लॉयज है या नो ऐसे गिग वर्कर्स है, थोड़ा है, मतलब यू हैव टू स्टडी द लॉजिस्टिक सेक्टर। हाँ सर, बट ये लॉजिस्टिक वाला पार्ट जो ई कॉमर्स साइट्स है, अभी नाइका तो एक ही लिस्टेड प्लेयर है जितना मेरे को मालूम है, फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं है इंडिया में लिस्टेड। तो हाउ विल दिस लॉजिस्टिक improvement or logistic increase will increase the position of e-commerce, because e-commerce is supporting logistic. सी ई कॉमर्स में तो ग्रोथ हो ही रहा है, हाँ, तो ई कॉमर्स इज करेक्ट, ई कॉमर्स सपोर्टिंग लॉजिस्टिक्स, सो यू डोंट टॉक अबाउट नाइका नाउ, यू टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक पार्ट। नाइका तो ग्रो हो ही रहा है, ओके, एंड वो तो अलग है, वो क्यों ग्रो हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ द मनी दैट पीपल हैव, वो रीजन अलग है नाइका क्यों ग्रो हो रहा है। बट नाइका के पैसे लॉजिस्टिक ग्रो हो रहा है, तो नाइका के पास 1000 ऑर्डर आए तो उसको तो डिलीवर करना ना, तो ही विल फाइंड लॉजिस्टिक पार्टनर्स, जैसे यू आर द वन लॉजिस्टिक पार्टनर, तुमको क्या लेना देना, नाइका का ग्रोथ हो रहा है ना, तो नाइका का हो रहा है तो तुम्हारा भी ग्रोथ होगा, तो अगेन इट्स एन एंसिलरी कंपनी। ओके, लॉजिस्टिक समझने के लिए तुमको नाइका समझना है, ऐसा है। ओके, ओके, थैंक यू। Arnav, anything on the festive demand, the news that you have shared? Yes, sir. So my news is related to the kind of related to the tourism sector. So due to the year-end holiday demand, a lot of these travel agencies which offer travel bundles have seen 25% boost to their forward bookings. And among these forward bookings, the domestic demand has increased by 15 to 20%, which is reflected in their domestic airfares, rising domestic airfares. Additionally, another thing to note is the consumers are now opting for longer breaks. So instead of 3-day trips, they are now opting for 6 to 12-day longer trips. Oh, okay. Also, the year-on-year prices for these peak week bundles have risen by 9 to 11% on account of higher airfares and also the hotels average daily rates. And in terms of the destination, Goa and Rajasthan are leading in terms of the premium demand. And also I tried to look into the hotels which are there in Goa and Rajasthan. So in terms of number of properties, the first one comes at the IHCL, Indian Hotels. Second is Marriott. Third is ITC. Fourth is Hyatt Hotels. And fifth is Oberoi. Oberoi is owned by East India Hotels. So among these, Marriott is not listed and Hyatt is not listed. Marriott is listed, na? Marriott is a part of Venetive. Which company? Venetive. Okay. I didn't JW know that. Marriott, yes. Okay. वो उनका part है. So Arnav, when you write your news, open. तुमने आज जो भी बोला, why are you not writing it in paragraphs? Reason, तुम लिख रहे हो ना, it is very difficult to present. See, मैंने बोला था ना 2 लाइन, जो भी तुमने अभी बोला 2 लाइन स्टॉप, 2 लाइन स्टॉप. Okay. तुमको ना खुद ये पढ़ने को भी प्रॉब्लम होगा बाद में, तो वापस कभी पढ़ोगे तो. Year-end holiday gives 25% boost to forward bookings. Why? Correct. So because as travelers are planning for longer trips than 3-day breaks. Okay. Now this demand reflects the rising domestic fare fares, which are roughly 15 to 20% on popular routes.
the peak price, फिर वापस peak prices are at 9 to 11% price on year on account of higher fares and hotel areas. Domestic Goa and Rajasthan remains the top destination for the demand. बीच में ज्यादा कुछ है नहीं ये न्यूज में, बट जो हम सेगमेंट फॉलो कर रहे हैं या इंडस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, अगेन अ पार्ट ऑफ टूरिज्म. ओके, Yes, sir. सो वो इसमें रहो, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा हूँ ना तो आई विल नॉट, क्योंकि मुझे भी 2 लाइन पढ़ने में इजी है ना. तुमको मैं 2 लाइन दूं या 10 लाइन दूं पढ़ने में, इजी क्या है? 2 लाइन. 2 लाइन आर मच इजियर. एंड वो क्या होगा जब व्हेन यू प्रेजेंट इट, तो वो तुम अटकोगे नहीं बीच बीच में. ओके, Yes, sir. और यू विल स्टक, जैसे तुम अभी अटक रहे हो बीच बीच में. इट्स बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन अ प्रॉपर वे. Sir, even I have sent you the result update of 3 companies. One is Redico, other is Shubham, Raymond. you have not raised the hand. I have asked Sir, I everybody have to raise raised the the hand. hand since. तो अभी भेजा तुमने. तो लोगों आशुतोष is there in the line. 1 second. Sorry, sir. Sir, I have just a point in Arnav News. Can I? Yeah, go ahead. So, sir, as Arnav said, it is happening in other cities, but also Uttarakhand is seeing a major tourism hit right now because of the year-end holidays. Uttarakhand has majorly into what we say, holy tourism. Yeah, yes. So that is increasing right now very rapidly, and because of that, there is a increase in Ease My Trip stock, sir. Stocks, yes, yes. Yes. Ixigo भी है उसमें. Ixigo है, make my trip नहीं है. Ixigo is there. I think और एक stock है उसमें, which is listed. Yes, sir. Okay. So ये obviously ये भी एयर फ्रेश बढ़ रहा है, मतलब you know इन जहाँ पे जाओ इंडिगो के फ्लाइट्स है वैसे तो. Indigo is like evergreen stock. Akasa told today that they will launch an IPO in next 2 to 3 years. So time है. Yes, sir. Okay. Yeah, Ashutosh. Sir, also, sorry. Yeah, Rishabh, sorry. Sir, also adding to his news, even I am preparing quarterly results on Ixigo. Right now, I'm not yet done, but however, I can present you the data. Like their revenue has increased, consolidated revenue has increased by approx 37% YOY. However, their expenses have doubled. The main reason is because of employee benefit expenses. They have issued ESOPs and also huge marketing expenses. However, because of the monsoons, the expenses were extremely high and they didn't cope up with revenue. Due to this, the EBIT, their net overall profit has gone negative and EBITDA margin has changed by 1,000 basis points. How much? 1,000 basis points. Okay. Yes, sir. तो कितना है? Profit करता है क्या company? Sir, since listing, this is the first time they have booked a loss of around 3 crores standalone. Okay. And this is also lost because of mainly the ESOPs issued around 23 crores. ठीक है, तो it is be a non-cash ना, तो it's fine. ठीक है. क्या हो गया? I'll be Stock- preparing this and stock I'll price? send it by 2 p.m. sir, if you Yeah, don't sure. mind. Yeah. Sure, sure. Ixigo का क्या कुछ आया क्या? Stock price movement? I haven't yet Like, checked, oh, sir. it's down. It's down 20%. Ixigo is down 20% today. Time to buy. Getting at a discount. Okay. Okay. Yeah, Ashutosh. Yeah, good morning, sir. Good morning. Today I'm going to present economic trends in the Indian economy, which is quietly driving the wealth revolution for the middle class people. So the headline inflation fell at 8 years low to around 1.5% in September. So GST cuts will also further. आशुतोष नहीं, it should be very quick. तुमने इतना बड़ा न्यूज़ लिखा है, मैं 10 सेकंड के ऊपर तुम्हारा न्यूज़ नहीं पढ़ने वाला, न्यूज़ नहीं सुनने वाला. Should be very quick. क्या है 4 लाइन जो बताने हैं तुमको on the inflation? Quickly. So the headline inflation fell to 8-year low to 1.5%. Why? Sir, because of RBI rate cuts and also, sir, I think because of RBI rate cuts. नहीं लिखा है ना तुमने, because of lower vegetable prices and fuel prices. हाँ, वो एक है सर. तो वही है ना.
हाँ क्या फिर हुआ, क्यों हुआ कम सर? बिकॉज ऑफ लोअर वेजिटेबल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस। फिर ये भी था, देखो सब तुमको एक साथ ही लिखना है। डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लोअर वेजिटेबल, फ्यूल फ्यूल प्राइसेस, कूलिंग ऑफ टैक्स रिलीफ, कंजम्पशन बिहेवियर इवॉल्विंग एंड फेस्टिव कंजम्पशन। नहीं, क्या 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 लिखा है? 2-3 लिखा है तुमने, सॉरी। हाँ, ये लोअर वेजिटेबल प्राइस एंड लोअर फ्यूल fuel प्राइसेस। prices. दिस वाज द रीजन। Yes. फिर Then, as there was a surge in gold prices, which also increased the balance sheet of household people. Then Morgan Stanley expects that around 85% of the GDP is held in form of gold in the Indian households. Uh, so, so families are having a good bonanza because they're having assets in the form of gold. Further, to give a quick update regarding the capital markets, uh, according to Aditya Birla Sun Life AMC, the physical assets of household savings, which were usually into real estate, have fell by over 3% till March 23. Uh, so basically, the money and the savings are going towards the mutual fund industry, which resulted in growing of AUM over 6 times in the period of last 10 years. Then the demat account have surged 38% CAGR in the last 5 years, with a total number reaching to 9.2 CR. Then, sir, this was the general economic trend which I read in an editorial in Economic Times. So I thought I would just share it. नहीं, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? ये बराबर है, अभी मुझे एंड गोल बताओ, ये पढ़ के मुझे, मैं क्या बट करूँगा सर फिर? उसने sir, उसने बोला कि this जीडीपी का 85% गोल्ड में है। मैंने सही सुना ना? हाँ हाँ, जीडीपी का yes. नहीं, आई थिंक हाउस होल्ड का है। हाउस होल्ड का जो है ना, अरे हाँ नहीं सॉरी, सर, हाँ जीडीपी क्या जीडीपी, हाँ होता है? करेक्ट, हाँ इतना गोल्ड इज होल्ड बाय इंडियन फैमिली हाउस होल्ड। मॉर्गन स्टैनले एस्टिमेट्स ऐसे लिखा था उस एडिटोरियल में। इतना ज्यादा गोल्ड? हाँ, आई वाज नहीं आल्सो नहीं, क्या होता है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया ना अभी, इसके लिए ज्यादा लग रहा है, नथिंग एल्स। सर उतना ज्यादा नहीं होएगा, नॉट नहीं पॉसिबल। होगा। सर नहीं इंडियन होगा जीडीपी सर। का बहुत मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सर। सर बिकॉज 4 गोल्ड की ट्रिलियन जो है पूरा। सॉवरेन गोल्ड होल्डिंग्स है उसकी पूरी टोटल अकाउंट कर रहे हैं टू बी, आई मीन 1.5 ट्रिलियन। द ऑल द क्या बोलते हैं, गोल्ड होल्ड बाय सेंट्रल बैंक इज अराउंड वैल्यूड एट 6 ट्रिलियन to 7 ट्रिलियन, अराउंड समथिंग लाइक दैट। हाँ, सर विल नीड टू रीचेक दैट सर। बिकॉज 30 ईयर का वो ब्रेक किया है ना रिकॉर्ड ऑफ यूएस ट्रेजरी होल्डिंग। ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऐसा दिख रहा है ना वो अमन? नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज तो डोंट बी कि इतना जीडीपी का है, क्योंकि जीडीपी इज सेलिंग। सी प्राइस अगर तुम देखोगे कोई कंपनी का, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री 1 लाख करोड़, तो उसका 2-3 लाख करोड़ उसका वैल्यूएशन। सो जीडीपी इज द ग्रोथ ना, कितना कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, इट हैज नथिंग टू विद इन्वेस्टमेंट्स। और प्राइसिंग बढ़ रहा है ना, हो सकता है, पॉसिबल है इंडिया में, और इंडिया बहुत गोल्ड इंपोर्ट करता है, मतलब जितना हम बेचते नहीं उतना तो इंपोर्ट करते हैं इंडिया, ऐसा है। आई नो इतने सालों से है, तो अभी उसका प्राइस 60-70% बढ़ गया गोल्ड दिस 6 मंथ्स में। तो ठीक है, मतलब इट इज नॉट अ बिग न्यूज, ये पहले से इट इज नॉट समथिंग दैट ऐसा है कि इंडिया का जीडीपी ग्रो नहीं हो रहा है, फिर इतना गोल्ड हम ले रहे हैं। सर हो सकता है सर, बिकॉज क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला ही लाइक हाउस होल्ड सेविंग्स हाँ, एंड हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेविंग टैक्सेस है रहता वही, है ना। सर तो एक वही है, तो फिर सर एक वो भी न्यूज़ थी, आई जस्ट हर्ड इट दैट एचडीएफसी का जो एएमसी का जो सीईओ है मनोज करके, ही वाज सजेस्टिंग दैट द गवर्नमेंट शुड, आई मीन इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स के म्यूचुअल फंड्स वगैरह का 5 ईयर लॉक इन पीरियड रखना चाहिए और उसके ऊपर टैक्स फ्री रखना चाहिए, so that Indians will sell off their gold holdings and will invest into mutual fund which can have better productivity and better efficiency. बट अगर लॉक इन पीरियड रहेगा तो पीपल विल गेट डिमोटिवेटेड ना टू इन्वेस्ट इन नहीं ठीक है। No, सच। no, no, it's not mandatory lockup, but जिसको टैक्स इंसेंटिव चाहिए ओके फॉर ओके टैक्स फ्री ओके पर्पस, तो उसके लिए 5 ईयर लॉक इन पीरियड। ओके ओके। यस सर, 5 ईयर में तो टैक्स का ये सिस्टम ओके होगा। नहीं ठीक है, वो अपने को उससे कुछ करना है नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस।
Okay. Ashutosh, yeah. Shubham, yeah, Shubham, bolo. Yeah. Sir, also I have shared quarter reports and news. So where should I start? कौन सा start करूँ मैं? And Like results I have shared of Raymond, Redico, and this Sami. Sami Autos, हाँ. Yeah, Redico yeah. की बात करो ना. What happened in Redico? वही हम. Sir, Redico ना. So moving to Redico का एक का ही बोलूँ सिर्फ. हाँ. Okay. In quarter two, the company delivered a very strong quarter. Revenue grew by 29.4% year on year in absolute term to 50.57 billion, driven by robust demand across both premium and regular liquor segments. The total volume jumped 37.8% year on year to 9.34 million cases, highest ever for the company. Within that, the prestige and above grew 21.7% and regular and others surged 79.6%, helped mostly by Andhra Pradesh route to market change and wider distribution reach. While the gross margin slipped slightly to 40 basis points due to material cost increase, this was stabilized by the input prices, lower excise duty, and better inventory management. EBITDA grew 45.4% year on year in absolute term to 2.36 billion INR, and margin expanded 50 basis point to 15.8%. By segment, if I conclude it, IMFL revenue rose 37.1% year on year, rupees 10.48 billion, led by both premium and regular brands. Prestige and above was up 24.3% to 7.8 billion, supported by Rampur, Mobris, and Royal Whiskies, showing strong. What's up? No, go ahead, sir. Showing strong transaction in premiumization in this segment, particularly. Regular and other grew 82.8% in absolute terms to 3.23 billion due to better execution and renewed demands, lifting IMFL's total share of sales to 70.1% from 68.4% last year on year. Meanwhile, no IMFL revenue increased 26.7% to 4.47 billion, aided by high bulk alcohol sale and improved discretionary utilization. So overall, I can say that Redico Khaitan has benefited mostly from premiumization also, and from the Andhra Pradesh route to market change, which also benefited the distribution channel. Okay, so what is your take on it? क्या है हम जो पढ़ रहे हैं इसमें? Like इसमें I can say that sir, ऐसे तो अल्कोहल पे मेरा ये फर्स्ट ये है, सो मेरे लिए डिफिकल्ट था थोड़ा समझने के लिए कि क्या है. मेरा फर्स्ट कंपनी था. आई हैव नेवर एनालाइज एंड आई डोंट ड्रिंक, सो मुझे इतना आइडिया नहीं था. बट जहाँ तक मुझे लाइक समझ में आया है, तो इसमें सेगमेंट में रेवेन्यू हुआ है मोस्टली IMFL में हुआ है 37.1% ईयर ऑन ईयर से, और इसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर था. तो इसकी वजह से द EBITDA हैज ग्रू, एंड द आंध्र प्रदेश रूट है वो, उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हुआ. IMFL वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ. Okay, so I will say again, no, premiumization trend is Yes, sir. kicking in, and किसका हुआ 37%. IMFL has grown 37%, right? Yes. And regular and other surge 80, ये 82% है regular and others. Yes, वो absolute terms में sir. अच्छा, okay. नहीं, absolute पर 82%. हाँ सर, मतलब 82. और सर मैंने एक चीज देखा कि वो लोग के जो प्रेजेंटेशन का रिपोर्ट है, उन्होंने उसमें मतलब रेवेन्यू का ऐसे किया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस लिया है, एंड देन उसमें एक्साइज ड्यूटी वहीं पे माइनस करके वहां पे नेट लिया है. हाँ, correct, तो हाँ. ये ऐसे मतलब ऐसे वो तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं लेते क्या? नहीं, excise duty is like a GST. कॉज माइनस बाकी जो एनालिस्ट के मैंने रिपोर्ट देखे, कुछ ने तो नहीं लिया है. मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऑपरेटिंग जो रहता है वही लिया है, और कंपनी ने खुद ने ऐसे लिया है. तो मतलब कैसे लेना चाहिए हम लोग को? नहीं, हमको तो रेवेन्यू माइनस एक्साइज ड्यूटी.
ओके तो मतलब Okay. ओके ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रॉस माइनस एक्साइज ड्यूटी ऐसे लेना हाँ है हाँ यस यस और मार्जिन से वो नेट पे ही फिर करना है ना। हाँ ओके सर। एंड दूसरा सर एक चीज मैंने नोटिस किया है रेमंड हम्म, लाइफस्टाइल में कि हम्म, वहां पे ना सर मतलब उनका ये जो मतलब प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग से ऐसा मुझे लाइक लग रहा है मेरी एनालिसिस मे बी आई कैन बी रॉन्ग वो प्रोड्यूसिंग में से ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है बिकॉज उनका जो सीओजीएस है उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 2.2% से ईयर ऑन ईयर गिरा है 2.2% एंड परचेज ऑफ स्टॉक रहता है वो 7.3% से इंक्रीज हुआ है और चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड है वो 3.9% से डिक्रीज हुआ है। ये ओवरऑल इसकी वजह से उनका जो सीओजीएस है वो डाउन हुआ है तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि वो ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा इसने ये ईयर ऑन ईयर बिजनेस किया है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। नहीं नहीं कैसा है ऐसा वी कैन नॉट मेक एन अजम्पशन ऑफ दिस कि ट्रेडिंग बढ़ गया है तो बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिंग के इशू के वजह से हुआ है ऐसा कुछ अजम्पशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ऐसा रॉ मटेरियल प्राइस ही बात कर सकते हैं उस पर रॉ मटेरियल प्राइसिंग में कुछ चेंज हुआ होगा ओके तो हमको ना बेसिकली फोकस सेल्स पे होता है कॉस्ट पे अगर कुछ हो रहा है तो वो इकोनॉमिक बेसिस पे रहा क्योंकि कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है यस सर तो वो अजम्पशन नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता नहीं कंपनी के बारे में एंड इट्स यूजुअली रेमंड शायद से खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है इतना वो शायद से ब्रांड ही मैन्युफैक्चरिंग करता है जैसे अपने 2-3 ब्रांड उसने बाई किए हाँ हैं तो वो किसी और मैन्युफैक्चर का रेमंड का नाम लगा के लोग बेचते हैं ओके ओके अनुराग हाय सर सर हम लोग जो बात कर रहे थे अभी रिकरिंग रैडिको तो हाँ द थिंग इज वो ज्यादा दिख रहा है वॉल्यूम्स बिकॉज लास्ट ईयर दे वर ऑपरेटिंग ऑन द लोअर बेस तो आंध्रा मार्केट ओपन अप हो गया इसलिए वो वी आर सीइंग द रेवेन्यूज द रेगुलर वॉल्यूम्स गोइंग अप 80% तो मे बी गोइंग एट Q3 विल गिव अस एन आइडियल पिक्चर एज टू कितना ग्रोथ आ रहा है परफेक्ट ग्रोथ में तो राइट नाउ इट लुक्स एलिवेटेड बिकॉज ऑफ अ लोअर बेस ऑफ लास्ट ईयर ओके ओके एंड सर और एक चीज था आई थिंक जो शुभम वो बोल रहा था रिगार्डिंग एक्सरसाइज ड्यूटी तो आई वाज पंचिंग नंबर्स फॉर हीरो एंड फॉर द लास्ट 10 years and from 2015 to 2020 there was this exercise duty that they had to pay पे हाँ now when I'm preparing so I punched the numbers in the raw PNL now while preparing the formatted PNL I will have to take that cost right but that cost is an indirect cost तो वो फिक्स्ड अपना जो नहीं नहीं एसजे में आएगा कि नहीं आएगा मतलब नहीं वो जो कैसे एक्साइज ड्यूटी है ना हमको सेल्स में हाँ से माइनस करना है ओके तो नेट ऐसा है सेल्स जो होता है वो आएगा नेट सेल्स होता है एक्साइज सेल्स माइनस द एक्साइज ड्यूटी तो वो इनडायरेक्ट में नहीं जाएगा एक्साइज ड्यूटी क्योंकि एक्साइज ड्यूटी हमेशा सेल्स पे ही लगता है एंड अभी वो जीएसटी आने के कारण वो एक्साइज निकल गया ना तो अभी जो रेवेन्यू आता है वो नेट ऑफ जीएसटी आता है अच्छा ऐसा है ओके ओके बिकॉज उन लोग ने क्या किया 2015 टू 2017 दे सबट्रैक्टेड इट फ्रॉम सेल्स एंड सेल्स फिर हाँ 2017 टू 2020 में वो लोग ने वहां से वो आइटम निकाला एंड नीचे बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें वो लाइन आइटम डाला तो तो यू हैव टू वैसे भी वो सबट्रैक्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट सेल्स हाँ हाँ ओके टू ओके सबट्रैक्ट फ्रॉम सेल्स ओके एंड सर लास्ट टाइम बताना था कि आई वाज पंचिंग द numbers also for TVS and I came across a few interesting data points. So we know that the company sells motorcycles and scooters. Now, scooters have delivered a growth of 13%. Okay, good. ओके And the motorcycles have exceeded the growth of scooters. So motorcycles have the motorcycle volumes have grown by 17% CAGR. And within motorcycles, the we know that premium motorcycles have been doing well because of premiumization. They delivered a growth of 10% CAGR. But surprisingly, their commuter motorcycle segment delivered a growth of 25% CAGR over the last 5 years. मोटरसाइकिल्स Yeah, commuter motorcycles. So premium motorcycles 10% and commuter 25%. So they're doing well in every segment that they're present in. It's not just premium motorcycles and scooters. Even commuter motorcycles is doing well, while the company like Hero is struggling there in the commuter motorcycle, which is their forte. हाँ तो यही वाला था ना ओवरऑल अनुराग हाँ हम हाँ जो देख रहे हैं सब तो इसके लिए हीरो नेवर परफॉर्म ना हाँ बट ये कम्यूटर लोग ने मोटर किया मतलब ये लोग का चल रहा था क्योंकि सो ये लगे एक ही मॉडल थे 2 ही मॉडल थे उनके रेडर हाँ रेडर की वजह से वो आई थिंक रेडर के वजह से बूस्ट हाँ हुआ हाँ हाँ या वैसा या ही या था तो या कम्यूटर मोटरसाइकिल ना आई विल से ये लोग सिर्फ मार्केट में रहने के लिए करते हाँ हैं हाँ वो कुछ उसमें भी इकोनॉमी एंड एग्जीक्यूटिव है तो वो एग्जीक्यूटिव अभी हाँ बढ़ रहा है एंड तो इकोनॉमी इज उसमें स्टिल कुछ स्ट्रगलिंग मतलब मैंने जितना बात किया ना कम्यूटर मोटरसाइकिल 3 और 4 हज़ार का मार्जिन होता है
हाँ Correct. हाँ हाँ इतना yeah, इतना yeah, लो है, इतना लो है। that is why Bajaj is focusing on 125cc plus. हाँ, लेकिन तो बोल इसके रहे लिए just prone to कम्यूटर इज जस्ट फॉर कि मार्केट में होना चाहिए। मतलब कोई अगर कैसा होता है, आई विल टॉक अबाउट थिंग्स लाइक व्हेन यू हैव टू बाय अ कार, probably you will not go and buy directly a Mercedes. इतना पहले तुम्हारा हर एक के पास नहीं होता, he will start from a lower range. तो लो रेंज की भी गाड़ी तुम्हारे पास होनी चाहिए, उस पर फायदा नहीं होता ज्यादा, बट जस्ट सो दैट कस्टमर्स volumes के लिए हाँ। इसके लिए लोग वो रखते हैं। और फिर ऐसा हुआ था कि एक टाइम पे इंडिया वाज कम्यूटर मार्केट ना, बट right. जो ट्रेंड जब चेंज हुआ 2019-20 के बाद, पीपल वांट, अभी तुम जो लोगे बाइक, तुम क्या ऑफिस जाने नहीं लोगे, सिर्फ ऑफिस जाने नहीं लोगे। Right. ओके, यू विल आल्सो बाइक, यार मुझे भी कोई अच्छी बाइक चाहिए, दिखती चाहिए व्हेन आई गो आउट विद फ्रेंड्स हाँ। फैमिली। तो वो ट्रेंड पल्सर ने चेंज किया था ऐसा है। फिर कैसा है, जैसे रूरल इनकम बढ़ रहा है वैसे पीपल आर लाइक, हमको नहीं चाहिए ना सस्ती वाली बाइक, वी विल प्रेफर एक्सपेंसिव बाइक। तो उसके वजह से आइसर का ट्रेंड चेंज हो गया था, लोगों को ना प्रीमियम बाइक चाहिए थे रूरल में, तो ये ऐसा हुआ है। बट हाँ, टीवीएस हैव डन वेल, तो उसका स्टॉक भी तो देखो, 50%, 60% सीएजी से ग्रो हुआ है वो। आई मिस्ड इट, आई विल से आई कंप्लीटली मिस टीवीएस। जब इतना दिखते हुए भी मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ आई वाज नॉट इनटू बाइक्स। एक मतलब मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी मिस्टेक है, अभी तो मेरा हर दिन बाइक पे ध्यान होता है, क्या कौन सी बाइक जा रही है बाहर। वही देखो मेरे तो हर दिन ध्यान होता है कि कौन सी बाइक नई आई है, ये कौन सा नया वेरिएंट है, कि आज बहुत सारे आ गए वेरिएंट्स। अभी उसमें भी वो स्पोर्टी सेगमेंट है, वो फास्ट ग्रो हो रहा है स्कूटर्स में, जो स्पोर्टी स्कूटर्स में ग्रो हो रहा है, हाँ, तो स्कूटर्स everyone आज is now introducing a model in that segment. 150 सीसी के बाइक्स आने लग गए आजकल, स्कूटर्स आने लग गए, सॉरी, इवन इलेक्ट्रिक स्कूटर। आई थिंक नाउ आई मीन पुणे, तो पुणे में ज्यादा स्कूटर्स दिखते हैं कंपेयर टू मुंबई। Yes. मुंबई में इतने नहीं दिखते कम्यूटर स्कूटर्स यार। पर ऑल्सो मैंने ना सामी होटल्स पे किया है, लाइक आई फाउंड दैट सामी होटल्स पे कोई मतलब लिंक्डइन पे भी एनालिस्ट या किसी का है नहीं, सो लाइक इट्स अ न्यू तो नहीं है, पर लाइक कंपनी लाइक कोई कर नहीं रहा है, बट इट इज इन एक्सपांशन फेज, उसने होटल्स भी खोली है, तो उसका भी मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया है, उसका भी क्वार्टर मैंने भेजा है, तो शुड आई लाइक उसके ऊपर भी शुड आई प्रेजेंट इट, उनका रिपोर्ट बनाओ ना फिर शुभम उस पर, रिपोर्ट बनाऊं ना? ठीक है या फिर शाम सर। को करो ना प्रेजेंट विद्या मैम के सामने। ओके सर, एक वो है और एक लीला होटल्स है सर, वो भी लाइक उसके बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, दोनों न्यू होटल्स है, एंड दोनों के बीच में आई एम कंफ्यूज कि मुझे मतलब कौन सा करना नहीं तो चाहिए। उसमें पहले कंपनी प्रोफाइल करना दोनों का है, उनको पूछेगा तो ऑब्वियसली तुम सामी बोलोगे तो मैं लीला की बात करूंगा, मैं लेमन ट्री की भी बात करूंगा। हाँ, तो एक तो मैं बड़ी मतलब एक लेमन ट्री ले रहा हूँ और एक ये IH नहीं ऐसा नहीं है, ले रहा हूँ नहीं होता है, ऐसा होता है कि तुमको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, मतलब वेबसाइट जाके तो एक बार देख लेना है कंपनीज करते क्या है, नंबर्स डालो नहीं डालो वो अलग बात। लीला क्या करता है, और तुम्हारा मैरियट क्या करता है, लेमन ट्री क्या करता है, उसके सेगमेंट के लोग क्या करते हैं पता होना चाहिए, ओयो क्या करता है, ये पता होना चाहिए। तुम उस पर रिसर्च करो या ना करो, क्योंकि लेट्स से जब तुम गाड़ी लेते हो, जैसे मारुति की तुम लेते हो, तुमको पता है ना वो सेगमेंट में टाटा की कौन सी गाड़ी है, पता यस होता सर। है। ये ऐसा होता है ना, जैसे क्योंकि जब तुम गाड़ी लेने जाते हो कैसे होता है ना, जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमको यही प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है, उसके कॉम्पिटिटर्स हमेशा देखते हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे कोई कंपनी बाय करनी है, तो ऑब्वियसली मैं उसके कॉम्पिटिटर्स देखूंगा ही, उसके कॉम्पिटिटर्स हाँ करके। सर, मतलब इसके स्क्रीनर पे मैं देखता हूँ तो उसके कंपटीटर्स में थॉमस कुक और ये सब नहीं आते वो हैं, गलत है, बट स्क्रीनर का नहीं देखना है कभी वो, हाँ, तुम बट इसके फिर लिए जब देखो। मैंने थॉमस कुक पे मुझे लगा चलो वो भी स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मैंने देखा तो उसका तो मोस्टली बिजनेस है, उसमें फॉरेक्स आ रहा है, और मतलब सर्वे वो तो मतलब अलग है, वो होटल मतलब वो उसके कंपटीशन में है नहीं, मतलब उसका तो सर्विसेज दे रहा है वो, और उसके मतलब रेवेन्यूज में सब में फॉरेक्स जनरेटेड रेवेन्यू वो सब भी आ रहा है, तो लेकिन वो उसके पीयर्स में दिखा रहा है कि ये उसके पीयर्स में है करके। वो अलग है, वो अलग है, पूरा अलग है। तो वही पीआर स्क्रीनर पे नहीं देखना है, सी मैंने बोला ना, खुद का रिसर्च होना चाहिए। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं की, मैंने सिर्फ ये था दिखाने के लिए किसी को, किसी ने कभी, जैसे अभी लीला की बात, तो कितना प्रॉफिट करता है, क्या ग्रोथ करता है, उसी के लिए मैंने थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज किया है, वरना कंपनी वेबसाइट और तुम्हारा प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इतना ही हमने ट्राई, जो कंपनी देती है वो। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आर आइडली मतलब क्विक रिसर्च के लिए अच्छी है, जब तुम 100 कंपनी ट्रैक कर रहे हो, तुमको टाइम नहीं है, तो वो सब ठीक है, तुम गिन चुन के 4 कर रहे हो, उसमें भी क्यों स्क्रीनर यूज कर रहे हो, ऐसा होता है।
और सर एक और इशू आ रहा है, लाइक मैंने एक्सेल पे ना एक ये फॉर्मेट बनाया है कि जितनी भी कंपनीज मतलब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और इसका मतलब टूरिज्म पे और लीजर सर्विसेज एंड एफएमसीजी, वो सब कंपनीज के नाम और उसका रिजल्ट किस दिन पे है, डेट, वो मैंने बनाया है। बट अभी आज जैसे डाबर का रिजल्ट है तो मैं कब से चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि कब आने वाला है, तो नहीं नहीं, तो वो उसके लिए उसका कोई। सीएनबीसी टीवी, इसके लिए सीएनबीसी टीवी चालू चालू करके रखना होता है। अच्छा चालू, तो वहां से पता, क्योंकि ऐसा कोई है क्या कि जहाँ पे नोटिफिकेशन हमें आ नहीं नहीं सकता है, नहीं ऐसा कोई नहीं थर्ड नहीं, पार्टी को? रिजल्ट आने के बाद वो बीएससी बार बार हम रिफ्रेश करते रहते हैं, बीएससी का वेबसाइट। हाँ, क्योंकि उसमें भी नोटिफिकेशन का सिस्टम है नहीं, मैंने देखा नहीं तो। हाँ, एक है पेड सिस्टम है, तो पेड है। हाँ, क्योंकि कल में एक कौन ऐप से है उसका, दिन पे आने वाला है वो तो पता रहता है कि आज आने वाला है कौन किसका, बट कि रिजल्ट फिर। का टाइमिंग नहीं होता है क्योंकि बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग होने के बाद होता है, बोर्ड में हमको नहीं पता कब होता है वो, ऐसा है। हाँ तो ये कब होता है, जब तुम रिजल्ट ट्रैक करते हो ना, बहुत ज्यादा। अभी हमको पता है टीवीएस का रिजल्ट आफ्टर मार्केट आवर्स ही आता है, क्योंकि हम इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा हाँ, ऐसा होता है। मतलब और मारुति का इशू रिजल्ट वो 2 भी हो बजे के जाता बाद है ही कि आता है। दोनों का अभी कल किसका आया था, दोनों का, रेमंड का और इसका यूबीएल, दोनों का साथ में आ गया था। तो अभी मैं एक ट्रैक कर रहा था तो दूसरा आ गया, तो उसके पहले मतलब वो दोनों फिर साथ में बहुत वो हो जाता है, डिफिकल्ट रह जाता है, पता नहीं रहता है कब कौन सा आने वाला है। और रिजल्ट आने के बाद भी मतलब अभी जैसे रेमंड का मैंने देखा तो उसका रिजल्ट तो आ गया, नंबर भी डाल दिया, लेकिन अब वो कौन सा सेगमेंट क्यों ग्रो हुआ है वो सब ट्रैक करने में आधा एक घंटा निकल जाता है कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, कंपनी क्या बोल रहा है, फिर उसका कंक्लूजन निकाला, तो तब तक दूसरा आ गया, मतलब ऐसे पूरा मतलब उसमें ही निकल जाता है, फिर शाम हो जाता है तो तब तक फिर कॉन कॉल्स चालू हो जाते हैं, और कॉन कॉल का भी टाइम ओवरलैप होता है, तो वो फिर एक दिन में मैनेज हो नहीं पाता है जितनी 3-4 कंपनी करनी होती है वो। तभी हमको 40 लाख देने के ना, 40-50 लाख, हाँ वही सर, बराबर है। वही चीज का देने के ना, कैसा। तो वही सर, फिर लेकिन ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ऑफिस आवर्स 5 कुछ नहीं होता है रिसर्च में, देयर आर नो ऑफिस आवर्स, देयर इज तो ओनली सर वन फिर टाइम, 8 AM के बजे तुमको सब कुछ देना है, फिर तो तुम घर रात पे भर जाके भी मतलब हमें फिर देखना पड़ता है क्या कॉन कॉल वो सब? सब कुछ। घर पे तो पहले जाने नहीं देते, अगर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ तो, और घर पे जाओ तो 8 बजे के पहले तुम्हारे सब रिपोर्ट सब, और सिर्फ एनालिस्ट नहीं, उसके जो प्रोडक्शन होता है वो लोग भी जगह रहते हैं। वो तो 2 शिफ्ट में, हमारी तरह 2 शिफ्ट में काम करने के, प्रोडक्शन में 12-12 घंटा, उनको कभी छुट्टी नहीं होती। तो लेकिन सर वहां पे तो ऐसा रहेगा ना, 2-3 एसोसिएट रहेंगे तो काम हाँ डिस्ट्रीब्यूट हाँ, हो जाता रहेगा ना एक नहीं दिन में। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही एसोसिएट था। 2-3 एसोसिएट, जब तुम गोल्डमैन सैक्स में काम करो तब 2-3 होते हैं। तो एक मतलब अभी आज तो कितने 3-4 कंपनी के रहते ही है एक ही सेक्टर में, तो तीन तो उस चार दिन कंपनी एक साथ कैसे होगा सर ट्रैक? तो उस दिन घर पे नहीं जाने का, पेरेंट्स भूल जाने के कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स भी है, तुम्हारे कोई बच्चे हैं, बीवी है, सब भूल जाने का। तो वो होता है कि द रीजन आई लेफ्ट माय जॉब इज लाइक, मुझे लगा डिवोर्स हो जाएगा मेरा ही चक्कर में। हाँ सर, अभी 14 नवंबर तक तो ऐसा ही है, 14 नवंबर को लास्ट बट है ये मारिको दिस का। इज ओके, ये होता है, इतना प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, अभी तुम बहुत कंपनीज ट्रैक कर रहे हो, इतना प्रेशर नहीं होता है, बट वो रिजल्ट सीजन के टाइम एक आध महीना तो होता ही है। मतलब यू डोंट बिलीव, मेरा था, मैं जो वर्ल्ड मार्केट देखने का, तुम तो भी इंडिया ही देख रहे हो, मेरे वर्ल्ड मार्केट में रिजल्ट आने के रात को 2 बजे, यूएस कंपनीज के, तो 8-9 बजे तक तो इंडियन कंपनीज ट्रैक होते थे। फिर हम सोने का ट्राई करने के, क्योंकि 2 बजे उठने का होता है। 2 बजे? यूजुअली हम 12 बजे सोते थे, तो 2 o'clock आई टू गेट अप। 2 o'clock को रिजल्ट आने का, तो रिजल्ट के पहले मॉडल अपडेट करके रखना है। मतलब रिजल्ट आने के बाद मॉडल अपडेट करते, 3 से 4 कॉन्फ्रेंस कॉल होने के, 4 से 5 हम रिपोर्ट बनाने के, और 6 बजे यू वापस सिंगापुर में। सो HSBC था तो सिंगापुर डेस्क था, तो सिंगापुर 6 बजे चालू होता है, 8:30 बजे होते, 8:30 बजते हैं। 6 बजे सब लोग फंड मैनेजर सबके कॉल पे होने के, कोई कोई तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी थे, उनका तो 4 बजे ही सुबह हो जाने की। तो दिस इज हाउ। तो सर दिन में हम बोलते हैं 8 घंटा सोना चाहिए वो हेल्थ के, तो वो तो हो ही नहीं पर वो पाएगा। तो सर सीजन सिर्फ उतना टाइम पूरा उतने साल थोड़ी उतने होता है, टाइम ऐसा के तो लिए फिर होता आदमी है, बचेगा ही नहीं। हाँ हाँ उतने हाँ। टाइम के लिए होता है, 1-2 हफ्ता प्रोबेबली। एंड ये जो मैं बोल रहा था ना, दिस वाज लाइक 3-4 days अ क्वार्टर, ऐसा था, रोज का नहीं था। रोज बट हो तो फिर ब्रीफ कैसा हाँ होता है, इतना काम करना ना, जाने तो पहले तो मौका बन जाएगा। इफ यू थिंक दैट इट इज अ वर्क, तो तुमको बोर ही हो गया। बट इफ यू थिंक कि अगर मैंने ये ट्रैक नहीं किया, मेरा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, अगर मुझे पता नहीं कल क्या हुआ है, तो फिर ना तुम लोगों को लगेगा कि अरे यार, मैं तो सिर्फ जॉब ही कर रहा हूँ, किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए इन्वेस्टिंग कर, तो मैं सोचूंगा अरे मैंने अगर देखा नहीं तो मेरे पोर्टफोलियो की वाट लगेगी ना, कल उठ के किसी ने पूछा पोर्टफोलियो में क्या हुआ। तो ये हाँ कैसा होता है, दैट इज वाई इट इज अ यंग एज पे तुम ये सब करते हो।
तो मे बी 25 से 30 में बोलूंगा मैं सोया ही नहीं होगा रात को, आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कभी सोया हो शांति से। बट ठीक है, दैट वाज वर्थ, मतलब ठीक है, मुझे अच्छा लगा। बट व्हाट आई डिड इज आई डिडंट स्पेंड एनी मनी, आई इन्वेस्टेड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता था 35, आई सेड 35 रिसर्च में लास्ट है, उसके बाद यू बिकम हेड ऑफ रिसर्च। 35 के ऊपर तुम काम कर ही नहीं सकते रिसर्च में, लेते भी नहीं है लोग। बट ऐसे भी कोर्स होते हैं ना जहाँ पे जो केपीओज है वो आराम वाले रोल्स होते हैं, क्रिजिल है। तो मैं जब क्रिजिल में गया तो मुझे स्टडीज के टाइम पे आपने फिर इसके लिए जॉब छोड़ दिया था ना, कॉज फिर दोनों नहीं होता है लाइक मैनेज। किसके लिए? स्टडीज अगर करना रहता था, मतलब हाँ, सीएफए कर तो रहे मैं हो छोड़ा था ना तो। बीच में, मैंने छोड़ दिया था। हाँ, सीएफए मतलब करते, इसी करने वाले करते, मेरे दोस्त ने किया, वो तो मेरे से वर्डल वाइज में था, मैं तो भी फिर छोटे कंपनी में था, बट ही क्लियर करने सर वाले करते। सीए वो लोग कर लेते क्लियर, वो तो मैंने नोटिस किया, लाइक सीए लोग 2-3 ऐसा हफ्ता कुछ नहीं, ब्रेक ले लेते हैं और उनको मतलब सीएफए हाँ, उनके लिए इजी ऐसा कुछ लगता नहीं है, होता पता है, नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ बहाने हैं। टिपिकल तो है ही, वो भी पढ़ते ही है, ऐसा नहीं बोल सकते वो सीए है तो उसको आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। और सीए वाला मेरा फ्रेंड है, सीए है, तो मुझे लगा कि तेरा हो जाएगा करके, तेरा सीए, वो मुझे बोलता है नहीं तू सीएफए है तेरा हो जाएगा, और अब तक दोनों का ही नहीं हुआ है, दोनों का जॉब नहीं है। उसको लगता है कि वो सीएफए जॉब नहीं जॉब और डिग्री का कोई लेना देना है नहीं रिसर्च में। नहीं, उसको लग रहा है मैं सीए कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए फाइनेंस में नहीं मिल रहा है, मुझे फाइनेंस का, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई सीएस को हायर कर रहा है, लेकिन दोनों को ही नहीं मिल रहा है। That is why you are betting on education. Education has nothing to do with research. It is education. आज जो तुमने कॉन्फ्रेंस पर पढ़े वो तुम प्रेजेंट करोगे तो फायदा होगा, बोलेंगे सर मैं लेवल 3 क्लियर हूँ, तो उसका मैं क्या करूँ? तुम लेवल 3 का जो स्टॉक बोलोगे ऊपर जाएगा। तो आज तो मैं भी नहीं बोल सकता कि कल क्या होने वाला। मैं तो इतना टाइम रिसर्च कर रहा हूँ, तब देन यू कम अप टू एन पॉइंट। तो वो सब इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। डिग्रीज ओके, इट मैटर्स, मतलब मैं नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मैंने खुद किया है। बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर रिसर्च में जाना है। अगर इफ यू थिंक दैट यू वांट टू ग्रो योर पोर्टफोलियो, यू वांट टू एनालाइज समथिंग, यू हैव टू हेल्प समवन। सी पीपल हु आर अर्निंग 100 करोड़, वो लोग नहीं सोते, तुमको लगता है सोना चाहिए 8 घंटा। कभी शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, इनके कभी बायोपिक्स देखना, 4 घंटा सोते। अमिताभ बच्चन 4 घंटा सोते सिर्फ। दैट इज वाई दे आर ना वर्थ 10,000 करोड़। इवन फॉर दैट सेंस हमारा बिल गेट्स, वॉरेन बफे की बात करो ना, दे आर क्रेजी अमाउंट। तो उनके साथ जब तुम काम करोगे, तुम 8 घंटा सो ही नहीं, प्रेफर ही नहीं कर सकते कि मैं 8 घंटा सो फिर उठू। ठीक है, मतलब हर एक का चॉइस होता है, तो दैट इज वाई ना, तो तुम सीए हो, सीए तो सीए क्यों प्रीफर होता है? इज बिकॉज दे, उन्होंने उतना टाइम दिया होता है, सीए होने को इट इज नॉट इजी। एंड दैट इज वाई नो कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मतलब इसने रात रात भर काम किया होगा। आईएम्स क्यों प्रीफर होते हैं इन रिसर्च रोल्स? इज बिकॉज दे कैन डू दैट काइंड ऑफ वर्क, काम दिया तो वो जब तक तुम प्रूव नहीं करते काम करने का, तो मैंने भी था, आई वाज आल्सो कंपीटिंग विद आईएम्स, हुआ ना, इट वाज फाइन, मतलब मैं जितना, ठीक है मैं कम कमाने का उनसे, पर उनके लेवल का ही था, बात तो उनके लेवल के ही होने की। तो था। सर ये डिग्री क्या इतना बड़ा मतलब रोल प्ले करता है क्या, जैसे आईएम या इन सब का नहीं, आईएम डिग्री का है या नहीं, फिर सी एफएमएस है? आईएम का डिग्री का मतलब नहीं होता है वो। आईएम, आई विल टेल यू एक एग्जांपल। मेरा एक स्टूडेंट था आईएम कलकत्ता से, वो ना, उसको मॉडलिंग सीखना था। तो एक मतलब वी यूज्ड टू डू क्लास, हम 11-12 बजे दोपहर को करने गए। उस दिन क्या हुआ, उसने ना मुझे 6 बजे, सॉरी रात को 2 बजे मैसेज किया कि सर वेन एवर यू आर फ्री वी विल हैव अ कॉल, मैं जरा टाइट स्केड्यूल पे चल रहा हूँ। जैसे मैं उठा 6 बजे, आई एम रिप्लाइड इन बैक, ओके फाइन वी विल, मैं तुमको बोला था आज को ऐसा टाइम पे फ्री है। उसका क्विकली रिप्लाई है कि सर कैन वी हैव अ सेशन टुडे, कैन वी हैव अ सेशन नाउ। ऐसे अरे अभी तो उठाऊ मैं। तो मैंने उसको पूछा तूने रात को 2 बजे मुझे मैसेज किया, तो तुम सोए नहीं हो या सो के उठ गए? बोलता नहीं सर मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, मेरा क्लास है 9 बजे, हमारा कुछ प्रेजेंटेशन कुछ करना था उनको, तो मैं सोने जा रहा था, तो आपका मैसेज आया, सोचा कि 6 से 8, 6 से 7 कर लेते, फिर मैं 7 से 9 सो 2 घंटा सो जाऊंगा। ये होता है डेडिकेशन, ये था डेडिकेशन। तो ये क्या तुम आईएम से हो या कोई भी नॉर्मल कॉलेज से हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कर सकते हो क्या तुम जैसे टीयर 4 कॉलेज से हो, सो के दिखाओ 2 घंटा दिन का कंटिन्यूस बेसिस, कर सकते हो। एंड वो ऑब्वियसली सो के दिखाओ मतलब कुछ काम करना होता है, मतलब इफ यू वर्क लाइक 20 आवर्स अ डे, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा।
20 नहीं, चलो 18 घंटा भी तुम काम करते हो दिन का, पॉसिबल ही नहीं है। आई हैव सीन इट। तुम करो जिम में रोज जाओ 18 घंटा, बॉडी नहीं बनेगी तुम्हारी? नहीं बनेगी क्या? उसके लिए तुमको प्रोफेशनल एथलीट होना चाहिए। बता, तुम बोलते तुमको मैराथन, आज तुमको बोले मैराथन भागो, तुम नहीं भाग सकते, पर अगर तुम रोज रनिंग करोगे तो भाग पाओगे? भाग पाओगे? बट सर एक वो भी रहता है ना कि लाइक अभी हम लोग ठीक है यंग है तो हो जाता है, बट देन आगे चल के हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट आता है इफ यू स्लीप लाइक लेस एंड देन इतना मतलब पूरा। तो रोज थोड़ी करना है ना, रोज थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ। तुम खाते खराब हो वो चलता है, बाहर का खाते हो वो चलता है, उससे हाँ हेल्थ मतलब खराब वो नहीं तो होती। अभी सबका ही रहता ही है ये, मतलब सब लोग ये जनरेशन में मोस्टली खाना उससे सब लोग। हाँ विराट कोहली खाता है, विराट कोहली खाता है बाहर का? नहीं वो लोग नहीं, मतलब वो तो क्यों? प्रोफेशनल एथलीट्स है तो उन क्यों लोगों को प्रोफेशनल बना? क्यों वो बर्गर खा के बना प्रोफेशनल एथलीट? नहीं। तो हाँ मतलब वही डेडिकेशन तो ये उतना। चलता है सर, इससे हेल्थ खराब नहीं होते। मैं 4 घंटा सोएगा तो हेल्थ खराब होगी, बाहर का खाएगा तो हेल्थ खराब नहीं होगी। ये सब रीजन है ना। मत खाओ बाहर का, वो भी मत खाओ, उससे हेल्थ खराब होती है तो नहीं होती। इफ यू हैव, देयर आर ना पीपल हु हैव प्रूव्ड इट। 4 घंटा सोने का मतलब, तुम अगर बोलते, मैं नहीं बोल रहा 4 घंटा ही सो, 6 to 7 आवर्स इज फाइन, पर 6 घंटे के बाद तुम उठ के करते क्या हो? टीवी देखेगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, फेसबुक स्क्रॉल करोगे, तो इट विल नेवर हेल्प, इट विल नेवर हेल्प यू ग्रो। आई हैव सीन, मैं भी नहीं था, मैं भी 6-7 घंटा ही सोता हूँ दिन का, ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटा सोता हूँ, बट वो बाकी के 12-15 घंटे आई वर्क तुम पे कि क्या करना है तुमको। बाकी वो बोला ना कि 15 घंटा में काम करने का, मैं भी बोला 15 घंटा काम करना, 7 घंटा सोने का, 2 घंटे मुझे इधर उधर मिलने का, दैट्स इट। 6-7 घंटा सोने का। तो फिर तुम क्या कर रहे हो 15 घंटे में? वो जैसे तुमने आज 3 कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़े, हम 8-8 पढ़ने के दिन के, तुमको लगता है 3 बहुत हो गए, इट्स बिकॉज तुमने देखे नहीं है लोगों को काम करते हैं। व्हेन यू वर्क इन दैट एनवायरमेंट तो, एंड फिर इतना अगर तुम करोगे, आज तुम इतने सारे पढ़ रहे हो, कल इंटरव्यू आ गया, बात कर सकोगे कुछ ना कुछ तो? मतलब अगर लेटेस्ट रहा तो बात कर सकता अभी जैसे हूँ। तुमने ये 3 पढ़ा है, बात कर पाओगे? मैं तुमको बोला सैमी होटल्स के बारे में बात करो, कर पाओगे कुछ तो? किसके बारे में? सैमी होटल्स के बारे में। हाँ सर उसके बारे में तो कर लूंगा, हाँ मतलब बात, कर लूंगा मतलब ना। जो मैंने तो ये किया है, प्रेजेंट किया है क्वार्टर, वो मैं एक्सप्लेन तो कर एक लूंगा। सेकंड शुभम, एक सेकंड। हेलो। गाइस आई एम सो सॉरी, आई हैव अ कॉल टू टेक। बॉबी जस्ट कॉल मी ना, जो था तुमको, ठीक है? हाँ हाँ ओके गाइस, सॉरी आई हैव टू लीव, सॉरी शुभम, सॉरी। ओके सर। ओके थैंक यू गाइस। थैंक ऋषिकेश यू कॉल सर, मी, थैंक यू। ऋषिकेश कॉल मी। सर मुझे भी मैं कॉल करूँ। Just call after 10 minutes. I'm just on a call. Okay. Bye guys. Bye bye. बाय सर। बाय सर।